रिटर्न की तैयारी कैसे कर, ओवरऑल रिटर्न में यू आर AIR 4 ओनली, राइट? ओनली फॉर रिटर्न, अगर रिटर्न का देखा जाए तो रिटर्न के लिए तो AIR 2 था मैं, रिटर्न के लिए। सो वी कैन से कि पूरे देश में मतलब सेकंड हाईएस्ट तेरे ही है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में रिटर्न में, राइट? So you're the man, whom should I ask how to prepare for written actually. So what would be your strategy like, because you have secured this many marks? So how would you go about preparing? And please cover your answers for three parts, that is mathematics, English, and rest of the GS. So how would you suggest? तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद वन एंड ऑल। टुडे वी हैव विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट, Chaitanya Pandey, and special because he is a Rimkolian. He is from RIMC and he is AIR 4. So as you are like AIR 1 in the Fauji show, because इससे नीचे कोई आया नहीं इतना with such a rank. So thank you very much Chaitanya for agreeing to coming on a show, and I'm sure both the audiences, that is SSB wali or RIMC aspirants, they will get to learn a lot from a guy like you. So, guys, today we will shoot two videos. First will be about NDSSB, and second will be about RIMC experience. How was his RIMC experience and how one can get into RIMC? So, Chaitanya here is from civil background. He has an uncle in the navy, and he has cleared NDA SSB in his first attempt. So, and he has got AR 4. So, Chaitanya, give your basic introduction to our audience. Hi guys, I'm Chaitanya Pandey. I belong to Haldwani, Uttarakhand. I recently cleared my ND examination and happily I got AIR 4. I used to study in RIMC Dehradun, and now I'm very much excited to join NDA, as Simrat sir has already told. So yeah. Okay, so I have a very special affiliation, as I've told Chaitanya earlier, that I had my understudy is from RIMC. So I used to give lot of lift, and there was this guy from RIMC called, you must have heard of him. So he, loved me a lot. He was from November Scouting 134 course. Editor इसके नाम को बीप कर देना, but he screwed me a lot. So but ठीक है, he taught me many things as a senior. It was his job. I did that with my juniors, so no issues there. But RAMC guys, I tell you, are like the best performers in the academy. I've seen my course mates, my seniors, juniors getting medals and performing for their squadron. Each and every Rimkolian who joins a squadron, he becomes an asset for his squadron. So Chaitanya, which all games do you play then? Games तो Rimkolians we play every game. मतलब वो उधर RIMC में तो हर गेम सिखाया जाता है. Jack of all trades. Favorite include मतलब cricket, hockey, shooting. ग्रेट। तो फिर जाके एकेडमी टीम शूटिंग है ना? नहीं, आजकल तो कोरोना के चक्कर में इवेंट्स हो नहीं रहे, तो हाँ, अभी तो पहले स्कॉन भी रगड़ा है। हाँ, बट चल कोई बात नहीं, स्क्वाडन में यू विल एक्सेल, आई नो. सो Chaitanya, let's say a boy has to prepare for his SSB. So what is the ideal way according to you? How should he prepare for his SSB?
आइडियल वे मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, वो वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन वाली स्किल्स डेवलप करनी सबसे जरूरी है। उसके लिए क्या है, ऐसा नहीं कि आप पहले रिटर्न क्लियर करो फिर एसएसबी के बारे में सोचो। रिटर्न से पहले ही वो शुरू कर दो कि हाँ भाई, मिरर के सामने कोई भी एक टॉपिक लिया लेक्चरेट का, 3 मिनट बोला उसके ऊपर। उससे क्या होगा, हर दिन आप बोलोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वोकैबुलरी डेवलप होगी, जो फ्लुएंसी से बोलते हैं वो डेवलप होगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारी लेक्चरेट में भी काम होगी, वो जीडी में भी काम है, वो काम आएगी, फिर तुम्हारे इंटरव्यू में भी काम आएगी, फिर तुम्हारे जो जीपी होती है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें भी काम आएगी। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अपनी वोकैबुलरी स्किल्स डेवलप करना, फ्लुएंसी डेवलप करना और कॉन्फिडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डेवलप करना। तो सबसे पहले जो बेसिक स्टार्टिंग है वो तो मैं यही बोलूंगा कि मिरर के सामने 3 मिनट कोई भी एक टॉपिक उठा लो और लेक्चर देना शुरू कर दो, तो उससे काफी अच्छे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर बाकी साइक वगैरह एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है मतलब एसएसबी का। तो उसे कोई भी मतलब इजी मत लेना कि हाँ भाई ये इजी पीजी मैं कर लूंगा, फाइनल डे जाके पॉजिटिव ही लिखना है बस, वो तो मैं लिख ही दूंगा। करो, उसकी प्रैक्टिस करो, थोड़ी बहुत करो, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर लो कि तुम रट के जा रहे हो कि हाँ भाई ये पिक्चर आएगी तो मैं यही लिख दूंगा। ये एक बहुत गलत चीज है जो काफी मतलब मेरे साथ के भी जो ग्रुप में आए थे वो कर रहे थे कि हाँ भाई ये स्टोरी थी भाई, मैंने तो ये तो मैं पहले से प्रिपेयर करके आया था तो मैंने ये लिख। ऐसा नहीं है। कोई भी पीपीडीटी की स्टोरी है, टैट है, एसआरटी है, वैट है, प्रैक्टिस करो, 8-9 बार प्रैक्टिस करो, इट्स मोर देन इनफ। तो मैं मतलब जो भी एस्पायरेंट है इंडिया के, मैं सबसे मतलब यही एक सबसे बड़ी एडवाइस देना चाहूंगा कि प्रैक्टिस फॉर साइक, बट नॉट दैट मच कि तुम वो रटने लग जाए तुमको, ये शब्द आएगा तो मैं ये लिखूंगा। इट शुड बी नॉर्मल। और फिर बाकी इंटरव्यू की जैसी बात है, इंटरव्यू में हमारे स्कूल में क्या था कि ऑफिसर्स रहते हैं हमारे स्कूल में, तो उधर पे हम मॉक इंटरव्यू दे देते थे। 2-3 ऑफिसर को मॉक इंटरव्यू दे दिया, अपने आपस में कैडेट्स को मॉक इंटरव्यू दे दिया। उससे क्या होता था, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता था कि हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ ले सामने वाला, हम दे देंगे जवाब। अब ऐसा नहीं कि तुम कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछ लिया, तुम रट के जा रहे हो उसे कि हाँ भाई ये पूछेगा तो मैं ये बोल दूंगा। उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो इंटरव्यूअर होता है वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है एक तो सामने वाला, तो पकड़ लेता है कि हाँ भाई तुमने ये किया तो ये, तो तुमने ये कैसे किया, फिर ऐसे वो घुसते जाता है इंटरव्यूअर। तो इसमें बहुत बंदे जो होते हैं वो कॉट हो जाते हैं। तो यही है, इंटरव्यू की मॉक प्रैक्टिसेस दो, मॉक इंटरव्यू दो 2-3 काफी है। Okay, great. So, how many marks did you score in your written? रिटर्न में मेरे 645 थे out of 900. God. And how much was the highest overall? हाईएस्ट ओवरऑल मेरा ही टमर है, रणजी सेक्शन से है वो भी लकीली, Okay. ओमकार आशुतोष, उसके 656 है। Okay, so he is AR1 also ना? हाँ ये AR1। तुम्हारे आपस का भी कंपटीशन होगा ना कि कौन AR1 आता है, कौन AR2 आता है? आप आपस का कंपटीशन ही मतलब जो जिसमें बोलता हूँ ना कि आरएमसी की बेस्ट चीज है, मतलब Best आपस चीज में है। कंपटीशन है इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए पर्सनल इंप्रूवमेंट हो रहा है। यही सबसे बेस्ट चीज रहती है आरएमसी। वो spirit is very good यार. I really admire you guys that way. So your और overall ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे कि कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे एनवी हो जाए, जेलस हो जाए। अच्छा कर रहा है तो उसके लिए अप्रिसिएशन है कि हाँ भाई वो बंदा AR1 लेके आ गया, मतलब काफी मेहनती बच्चा है, ऐसा आता है मतलब दिल में। अच्छा, हमारे कोर्स में क्या होता, 2 बंदे थे आरएमसी में, 139 इंडिया, 2 guys were there, ठीक है। सो अभी नाम तो मैं तेरे को बाद में बताता हूँ, लेकिन वो दोनों साथ में रहते थे। फिर समझ रहे हो, हमें उनको 2 टर्म लग गए अपना दोस्त बनाने के लिए, समझ रहे हैं, बिकॉज दे वर लाइक अनब्रेकेबल। क्योंकि उनको कुछ भी हो जाए, मतलब दे आर टुगेदर ओनली, कुछ भी पार्टनर, तेरे को पता है कि सेशन हो गया रात को तो उसमें वो पेयर, बड़ी पेयर बनते हैं, तो दे आर इन पेयर्स ऑलवेज, और ना हर जगह साथ में जा रहे हैं, बाथरूम भी साथ में जा रहे हैं, खाना खाने भी साथ में जा रहे हैं। सो वो बॉन्ड इज दैट लेवल। सो इट वॉज ओनली ना आफ्टर एटलीस्ट एन ईयर दैट वो एक जो सिविलियन बैकग्राउंड वाले और जो आरएमसी वाले, दे बिकम लाइक उनका बॉन्ड बनता है। बट जो आरएमसी वालों को बॉन्ड होता है, दैट इज़ लाइक अमेजिंग है। तो फ्रेटर्निटी है, जैसे हम लोग बज रहे हैं और वहाँ पे हमारा ही कोर्समेट सीनियर केबिन में फ़ोन चला रहा है और वहाँ से सेल्फी मार रहा है। सो दिस सम ग्रेट मेमोरीज। बट सो रिटर्न की तैयारी कैसे कर, ओवरऑल रिटर्न में यू आर AR4 ओनली, राइट? ओनली फॉर रिटर्न, अगर रिटर्न का देखा जाए तो रिटर्न के लिए तो AR2 था मैं रिटर्न के लिए। सो वी कैन से कि
पूरे देश में मतलब सेकंड हाईएस्ट तेरे ही है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में रिटर्न में, राइट? So you're the man, whom should I ask how to prepare for written actually. So what would be your strategy like, because you have secured this many marks? So how would you go about preparing? And please cover your answers for 3 parts, that is mathematics, English and rest of the GS. So how would you suggest? रिटर्न के रिगार्डिंग तो हमारे स्कूल में मतलब एक काफी अच्छी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। जैसे हमने 11th कंप्लीट किया, Yeah. उसके बाद जो भी 12th के चैप्टर हैं वो शुरू कर देते हैं वो लोग। Okay. और जैसे ही चैप्टर कोई कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सीधे एक टेस्ट ले लेते हैं। Okay. तो उससे क्या होता है कि तुमने कोई चैप्टर कर लिया है तो तुमको कितना आ रहा है उसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि कोई भी चैप्टर अगर तुम कर रहे हो, चाहे वो पाथ फाइंडर से कर रहे हो या फिर एनडीए किट से कर रहे हो या फिर तुम एनसीईआरटी से ही क्यों ना कर रहे हो, कोई भी एक चैप्टर कर लिया उसके बाद उसका टेस्ट लो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें उससे क्वेश्चंस देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सीनियर्स और टीचर्स दोनों ने बताई मैथ्स के रिगार्डिंग। और फिर मैथ्स की एक छोटी तुम्हारी नोटबुक होनी चाहिए जो तुम्हारे एंड तक काम है। तुम्हारा एनडी अगर 18 का है तो 17 तक उसमें इंप्रूवमेंट होता रहना चाहिए वो फॉर्मूला वाली बुक में, कि हाँ भाई ये ट्रिक काम आ जाएगी यहाँ पे, ये ट्रिक यहाँ पे काम आ जाएगी, ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आ जाएगा। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर तुम मैथ्स की अच्छे स्कोर के लिए एम कर रहे हो तो एक मैथ्स की छोटी सी फॉर्मूला बुक, ज्यादा बड़ी नहीं, वो बना लेना ताकि वो तुम्हारे एंड मोमेंट पे काम आई कि हाँ भाई तुमने वो जनवरी में पढ़ा था और फिर तुम मार्च में से भूल गए तो वो उस फॉर्मूला नोटबुक से तुम्हें याद आ जाएगा। तो मैथ्स का मैंने जैसे पहले बता दिया है। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत जरूरी है। Yes. अब सिर्फ अगर मान लो सिर्फ 1 महीना बचा है तुम्हारे पास एनडी रिटर्न्स के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो और फिर टाइम लगा के सैंपल क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो अटेम्प्ट करना शुरू करो। देखो कि तुम्हारे कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे गलतियां हो रही है, कौन से वीक चैप्टर है और कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। देखो हर किसी का स्ट्रॉन्ग चैप्टर होता है और किसी का वीक चैप्टर होता है। अब जैसे कि मेरे कोर्स में काफी लोगों का इंटीग्रेशन काफी वीक था, कैलकुलस, तो मोस्ट लोगों ने इंटीग्रेशन छोड़ दिया और पेपर में भी नहीं करके आए। पर उनका प्लस पॉइंट क्या था कि वो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो उनने उस पर काफी फोकस किया, जो भी क्वेश्चन थे वो सब करके आ गए। तो एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसके सब क्वेश्चन तुम्हारे हो जाने चाहिए पेपर में। और जो वीक, तो मान लो कोई वीक पॉइंट है तुम्हारा तो उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हें 120 में से 120 मारना है। अगर तुम 110 पे मार दो तो काफी है तुम्हें। तो मैथ्स के लिए तो मेरी टिप यही रहेगी। फिर जीएटी है। अब देखो जीएटी का तो क्या रहता है, इसका कोई सिलेबस नहीं रहता है। तो जीएटी हमारे सीनियर्स ने मेरे को सजेस्ट की थी, क्राउन जनरल नॉलेज करके आती है, अच्छा, ब्लू रंग की। तो वो मेरे को सजेस्ट किया था। हाँ, तो सीनियर्स ने। तो फिर उसमें काफी अच्छा है, वो पूरी एनसीईआरटी की समरी है एक नाम से। तो फिर अगर एक बारी तुम उसकी रीडिंग ले लो और क्वेश्चन जो मेन ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो रहते हैं वो आराम से हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे कि नेम द टाइप ऑफ क्लाउड्स, टाइप ऑफ बेस, स्टेट्स वगैरह। वो क्वेश्चन एक बार रीडिंग मान लोगे बुक से, वो आराम से हो जाएंगे। फिर सिविक्स से क्वेश्चन है, सिविक्स का वही रहता है। सिविक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिविक्स में है वो है कि इसको स्टोरी के टाइप से याद करो कि हाँ भाई अंबेडकर ने ये कर दिया था, फिर इसने ये कर दिया। तो उस टाइप से सिविक्स का इंटरेस्टिंग बन जाती है, तो उसे पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है। तो सिविक्स का ये हो गया। और साइंस का क्या है कि साइंस में कभी कोई 12th की चीज नहीं आती, तुमने देखा होगा 12th की फिजिक्स या केमिस्ट्री। जो साइंस का एक मेजर पोर्शन रहता है वो रहता है तुम्हारा 10th का, 9th-10th का। तो अगर तुम 9th-10th की एक बार किताबें अपने टेक्स्ट बुक पलट के देख लो जो तुमने 10th में पढ़ी थी, तो इट्स मोर देन इनफ। जीएटी का जैसे पहले भी लोगों ने बताया कि 50 क्वेश्चंस रहते हैं एसएसटी से, 50 क्वेश्चंस रहते हैं साइंस से, 50 क्वेश्चंस फिर इंग्लिश से। तो इंग्लिश मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे अगल बगल पे जब मैं रिटर्न देने गया था तो 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश के रहते हैं वो लोग स्किप कर गए थे। ऐसा नहीं है यार, इंग्लिश सबसे ज्यादा आसान है। हाँ, पर आजकल जो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ईडीएम से, हाँ वो मैं मानता हूँ कि वो थोड़े टफ आ रहे हैं, पर बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत इजी रहते हैं। अगर तो तुम पर वीक हर दिन भी अगर तुम ना 2-3 शब्द पढ़ते जाओ, 2-3 एक्सरसाइज कर लो, 2-3 वर्कशीट्स कर लो इंग्लिश की, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तुम 50 में से आराम से 40 से 45 स्कोर कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए मेरी ये टिप रहेगी, तुम हर दिन एक वर्कशीट उठाओ, चाहे वो रैन एंड मार्टिन हो,
या पाथफाइंडर हो या एनडीए किट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही क्यों ना हो, वो 10 क्वेश्चंस या एक पेज हर दिन करो, उससे तुम्हारी वोकैबुलरी और जो इंग्लिश ग्रामर हो काफी मतलब काफी इंप्रूव कर जाएगी। तो इंग्लिश के लिए मेरी ये टिप रहेगी। फिर एसएसटी का जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड जनरल नॉलेज है, काफी अच्छी है, उसका देख लो। और फिर साइंस में 9-10 की आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री देख लो। फिर फिजिक्स में कभी कभी क्वेश्चंस 11-12 के आ जाते हैं, उतनी बेसिक नॉलेज सबको होती है, तो जीएटी से इतनी डरने की बात नहीं है। मेन है मैथ्स पे फोकस करो। मैथ्स में मिनिमम 35 क्वेश्चन तो तुमको करने होते हैं पास होने के लिए। और फिर उससे ज्यादा अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है, जैसे मैंने पहले बताया, वो सब टिप्स आप फॉलो करेंगे, आपके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। Okay. So, mathematics में which all books did you use for preparation? मैथ्स में हमारे वहां तो मतलब काफी किसी कोर्समेट ने कोई बुक खरीद ली, किसी ने कोई खरीद ली, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास काफी सारी बुकें थी। Okay. मान लो मेरे दोस्त का पाथफाइंडर है, मेरे पास एनडीए किट है, उसके बाद आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हैंडबुक है, तो मतलब काफी सारी बुक हो जाती थी। तो थोड़ा थोड़ा मैंने हर जगह से पढ़ा, पर मेन फोकस अगर देखो कोई भी यूपीएससी एग्जाम होता है, उसका बेस जो रहता है वो रहता है एनसीईआरटी। अगर तुम एनसीईआरटी सही से कर लोगे तो तुम कोई भी यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हो। Yes. बस फाइनल एग्जाम में क्या रहता है कि वही जो बेस होता है उसमें थोड़ा एक चेंज कर देते हो। अगर वो तुम बेस को तुम समझ लो, कॉन्सेप्ट को तुम समझ लो, तो मतलब मैथमेटिक्स आराम से निकाल सकते हो। Okay. पर बुक अगर कोई मुझे सजेस्ट करने को बोले तो पाथफाइंडर Yes. और लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर कोई कर ले और एनसीईआरटी बुक, इतना काफी है। Okay, great. So guys, you have heard it from the man himself, how to prepare for NDA written, and you know ऐसा insight ऐसा कहीं नहीं मिलेगा तुमको. So do incorporate, just don't not only listen but incorporate what he has said and think about it. ठीक है. Also तेरे फिर SSB में मार्क्स कितने थे? एसएसबी में मेरे थे 384। 384. ओके. तो एसएसबी में मार्क्स मतलब डू यू थिंक कि इट मैटर्स? बिकॉज मतलब कुछ कहते हैं कि ऐसे ही अपने हिसाब से देते हैं और कुछ बोलते हैं नहीं यार, इट रियली इट इज़ काउंटेड OLQ वाइज. व्हाट इज द, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि एसएसबी के मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाते हैं, मुझे भी कुछ समझ में कभी नहीं आया। ओके. हम दोनों में एक सिमिलरिटी है शायद से, मेरे भी शायद से 384 थे एसएसबी में मार्क्स. अच्छा। बट मेरे रिटर्न में तेरे से आधे होंगे. नहीं सर, नहीं। तो इतने ज्यादा यार रिटर्न में तेरे, तेरे को पता है तेरे मार्क्स में 2 लोग पास हो जाए. गुड यार, ग्रेट जॉब. तो तू रिटर्न की तैयारी तूने स्टार्टेड इन 11th ओनली, राइट? हाँ, 11th के एंड में, मतलब 11th जब हमारी स्टार्ट हुई थी तो सीनियर से बता दिया कि हाँ भाई 11th से क्वेश्चन आते हैं, तो 11th अब तुम टाइट हो जाओ यार, अब बिल्कुल मतलब इधर उधर ध्यान भटकाना, ये पढ़ाई वढ़ाई में मस्ती वगैरह नहीं, अब थोड़ा फोकस करना शुरू करो। तो हम मतलब सीनियर्स ने पहले से बोल दिया था। यस, ग्रेट. और एसएसबी में जैसे मेनी पीपल आस्क कि सर साइक लिखते हैं ना तो आइडियाज़ नहीं आते कि ये स्टोरी कैसे लिखें, एंड दे गो ऑन टू मेक अ सब स्टैंडर्ड स्टोरी. ठीक है, आई गेट टू हियर सच स्टोरीज दैट इवन इफ़ यू मतलब उनका मीम बना सकते हो उन स्टोरीज का. ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर दैट साइक की जो स्टोरीज होती हैं और सेल्फ डिस्क्रिप्शन, तो वो कैसे प्रिपेयर किया जाए? स्टोरीज का ये रहता है मेन कि देखो पॉजिटिव थिंकिंग तो हर किसी की होती है। हाँ भाई, किसी भी बंदे को बता दो, अगर कोई बंदा रोड पे मरा हुआ दिखा है तो हाँ ऑफ कोर्स हर बंदा पॉजिटिव ही लिखेगा कि हाँ भाई उसके बाद वो हॉस्पिटल गया, ये हुआ। आपको ये तो ना लिखेगा कि उसकी डेड बॉडी को कहीं वो कर दिया, मतलब उठा के फेंक दिया साइड में, ऐसा तो कोई नहीं लिखेगा। ऑफ कोर्स सब हर कोई पॉजिटिव ही लिखेगा उसके बारे में। तो अब ये है कि तुम उसमें एक्शन कैसे दिखा रहे हो, तुम उसमें डिस्प्ले कैसे कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर OLQ है या नहीं है। यस. तुम कैसे दिखा रहे हो कि हाँ भाई आने वाले फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस अवॉइड कैसे हो सकती हैं। मान लो किसी बंदे एक्सीडेंट हो गया, अब तुमने बोल दिया कि हाँ भाई उसको हॉस्पिटल छोड़ के आ गए, उसके फैमिली मेंबर्स को बता दिया, नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं करना है। तुमको ये बताना है कि आने वाले फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स अवॉइड कैसे करेंगे। तो ये तुम्हारा दिखा रहा है कि OLQ में कि तुम आगे की भी सोच रहे हो।
Okay, है can ना? you तो please मतलब तुम्हें बताते elaborate हैं कि this? हाँ भाई यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग गई, यहाँ हाँ. पे ट्रैफिक लाइट लग गई, Okay, ज़ीब्रा क्रॉसिंग लग गई, तो इससे एक्सीडेंट अवॉइड हो सकते हैं। okay. तो इस टाइप की जो चीजें हैं, मतलब एक्शन वाली जो चीजें हैं, वो सब अगर तुम दिखाओगे तो उससे काफी मतलब OLQ का डिस्प्ले होगा। तो साइक वाला ऑफिसर जो है मतलब देखेगा कि हाँ भाई ये बंदा सोच रहा है कि इस बंदे में OLQ वाली स्किल्स हैं। Good. और self description? How did you prepare your self description? मैं पर्सनली बताऊं तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन हमारा क्या था कि सीनियर्स ने एक काफी मतलब मेजर हाथ था मतलब हमारे SDT के पीछे में। तो हमने SDT लिख दिया, हाँ भाई कि ये SDT है, अभी वो रॉ फॉर्म में था, तो सीनियर्स को हमने दिया, सीनियर्स ने रिफाइन किया उसको, रिफाइन किया, हाँ बोला कि हाँ भाई ये मिस्टेक है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर। हमने फिर वाली लाइन देखी, हाँ भाई ये सही आ रही है, फिर सीनियर्स ने बोला हाँ भाई ये सही है। इस टाइप से मतलब एक हमको एक काफी अच्छा वो मिल गया कि हाँ भाई सीनियर्स ने बता दिया SDT क्या करना है। बाकी SDT ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम ये लिखो तो तुम नहीं वो रिजेक्ट हो जाओगे, अगर तुम ये लिखोगे तो रिकमेंड हो जाओगे। SDT कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो तुम सोचते हो अपने बारे में, उसे एक पॉजिटिव वे में लिखो बस। What was your blank story? ब्लैंक स्टोरी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, कि सीनियर ने सजेस्ट किया था कि अपने बारे में लिखना। हाँ भाई तुम्हारी क्या कोई ऑब्स्टिकल तुम्हारी लाइफ में आया था, उसको कैसे ओवरकम किया, और फिर कैसे मतलब, तो मेरी एक शायद से मेरी ब्लैंक स्टोरी थी कि हॉकी टूर्नामेंट के बारे में मेरी एक स्टोरी थी। Okay. कि एक एक बंदा है, वो टीम का कैप्टन है, उसने कैसे अपनी टीम को एक 25 साल से कोई एक कप नहीं जीता था उनने, एक हॉकी टूर्नामेंट, वो उसने कैसे अपनी टीम को साथ में लेके उनके प्रैक्टिस करा के ये वो करा के कैसे 25 साल बाद वो टूर्नामेंट वो कप फाइनली वो स्कूल जीत गया। Okay, great. ठीक है, तो उसमें एक्शंस क्या क्या लगाए तुमने? जैसे एक्शंस जैसे बोलूंगा कि he told his team to for extra diet, he brought shin pads and training shoes for his team. Yes. कोई भी अगर किसी को भी चोट लग जाती तो he was always there for his team कि हाँ भाई बैंडेड लगा दो। he always give rest to his teammates. he always motivated his team after the sessions. हर बारी जब भी मॉर्निंग सेशंस होते थे, मॉर्निंग वर्कआउट्स होते थे टीम के, तो हमेशा he was the first one to reach the प्लेग्राउंड। इस टाइप की चीजें जो है वो एक्शन दिखा रही कि हाँ भाई ये बंदा वो है कि जो लीड कर रहा है। Yes. इस टाइप की चीज। Yes. Okay. So, guys, this was the first part of a conversation with the AIR4 Chaitanya Pandey, Rimkolian, now going to be cadet. So in National Defense Academy, hopefully he joins my squadron. So let's hope. And thank you, Chaitanya, for sharing such valuable insight regarding NDA written and both SSBs. So guys, stay tuned for the second part. Second part would be around his experiences in RAMC, and I'm sure he has some some experiences in RAMC. इतने साल वहाँ पे काटा है, so it is going to be fun. So please do join us, and please like, share, and subscribe. Jai Hind one and all. और सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो ये आप मतलब YouTube चैनल चला रहे हैं, मतलब भारत के वीर फाउंडेशन पे शायद आपका वो जा रहा है सब। Yes. मतलब इट्स अ माइंड ब्लोइंग जॉब सर। मतलब ये मतलब काफी एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। आप जो मतलब जो भी शहीद लोग हैं, जो भी मार्टियर्स हैं, Yes. मतलब मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूंगा काफी सर काफी मेहनत कर रहे हैं सबके पीछे। मतलब एक बहुत बड़ा हाथ सर का है ये, जो भी मतलब मार्टियर्स शहीद जो भी हुए हैं। तो प्लीज जो सर कह रहे हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल। Thank you very much, Chaitanya. हमारा प्रमोशन OPAR4 नहीं किया भाई, so I have something to brag now. ठीक है, so please like, share and subscribe. And as you know, all money is going to भारत की वीर फाउंडेशन. तो करो फिर इसको। जय हिंद।